ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ BS4 ਕਰੇਗੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ। ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਆਪਕੇ द्वार प्रोग्राम ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੇਅਰ ਰਵਿਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਬੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं रिटेल किराना एसोसिएशन का कैशियर भी हूँ। तो हमारे जो रिटेल किराना एसोसिएशन में है तकरीबन कोई 990 के करीब हमारे मेंबर हैं। उसमें बहुत से बंदे हैं जो पटाखों का कारोबार करते हैं। इस हिसाब से हज़ारों बंदे वही बात है बेरोज़गार हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट वही बात है ये पटाखों को बैन करती है। वैसे भी हमारा हिंदुओं का सबका ये त्यौहार है और खुशी से हम लोग ये मतलब बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। दूसरी बात ये है पंचकुला और मोहाली के अंदर जो पटाखे हैं वो बैन नहीं है और जो कि हमारी ट्राई सिटी है जो कि हमारे बिल्कुल राउंड एरिया में वही बात है ये आसपास लगती है तो वहाँ पर पटाखे चलाए जाते हैं। तो हमारे जो चंडीगढ़ के बच्चे भी हैं बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमें वही बात है कि दिवाली का इंतज़ार था। बच्चों को भी इंतज़ार रहता है और बड़ों को भी इंतज़ार रहता है और दुकानदारों को तो इंतज़ार रहता ही है। उनकी तो ये होता है भी हम दिवाली पे कोई कारोबार करेंगे अपने बच्चों के लिए, वही बात है थोड़ा कुछ पैसा जुटाएंगे, वही बात है ये कारोबार करने से। तो अगर गवर्नमेंट है आजकल तो वैसे भी ग्रीन पटाखे आ रहे हैं मार्केट के अंदर 2-3 साल से जो मैन्युफैक्चर है ग्रीन पटाखे ही बना रहा है तो वो अलाउड हो जाने चाहिए, वही बात है ये। मेरा ये कहना है जी कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल हर टाइम ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਐਪੀਸੋਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ 11th ਆਵਰ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਈ ਤੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਏਗਾ ਦਿਵਾਲੀ 'ਚ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 2 ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਜਦ ਮੇਅਰ ਰਵਿਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। देखिए, इसको पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल किसी धर्म या उससे संस्कृति से जोड़ के नहीं देखना चाहता, खासकर पटाखों की बात जो आप कर रहे हो। देखो, पटाखे हम खुशी के लिए चलाते हैं, मगर हम बोलें कि हमारी संस्कृति में, सभ्यता में कहीं लिखा कि पटाखे जलाने हैं, वो नहीं है। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला एनजीटी के कोई ऑर्डर है जिसमें पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो बैन करी है। हमने निवेदन करा है कि उसमें ग्रीन पटाखे जो वो चलाने की परमिशन दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको हमारी कंसिडर करेगी और ग्रीन जो पटाखों की बात कर रहे हैं वो उनकी परमिशन जरूर देंगे। यानी व्यापारी इस बार तैयार रहे कि ग्रीन पटाखे? देखिए, मैं तैयार रहने के लिए मैं नहीं कह सकता, वो उनका पैसा लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे, जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल पब्लिकली पहले ही बता दिया जाएगा। आप कोशिश करेंगे? हम प्रयास बिल्कुल करेंगे और बात करेंगे। ਪਟਾਕੇ ਜਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BS4 ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲ BS4 ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। टेंशन जांच करे, आई भी जांच करे, लेकिन अपराध तो नहीं कर सकते ना हम लोग, तो फिर कहां से इंसान बचेगी। और उससे सर की बात ये देखिए, संविधान के मुताबिक एससी आयोग बना हुआ है। पंजाब से मुझे साधरा जी हैं जो चेयरमैन है, उनका तक बयान नहीं आया। तो यानी कि एक वर्ग को, एससी कम्युनिटी को सिर्फ मजदूर, अछूत, दलित समझ करके और एक पिछड़ा वोट बैंक समझ करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। हम लोग कल 12 से 4 के बीच हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बीच में आंदोलन करेंगे, 20 फुट रोड जाम करेंगे। अब हमने मुकदमे लगे या जिन लोगों ने वहां दबंगी दिखाई है, उस पीड़ित को मारा है, वो हमें मारने आ सकते हैं। हम शहीद होने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं। हम अपने भाई के वाल खाने आए हैं। मुझे तो ये लगता था कि पंजाब इतना मजबूत है, और पंजाब में खास करके एससी कम्युनिटी ने, अम्बेडकरवादी लोगों ने, राष्ट्रवादी लोगों ने, जो भाईचारे को कायम किया है, गुरु नानक जी को मानने वाले लोगों ने हमेशा एक पहल करी है। लेकिन आज पंजाब की आवाम पे ताला क्यों है कि वो दलित है, वो एससी है? ये जवाब है। मैं यूपी से चलकर आया हूं, मैंने भीख मांगी है पंजाब के लोगों से कि इस पीढ़ी के लाल खान कम से कम न्याय की मांग तो करें, जैसे आपने लखीमपुर में की थी। वहां पर 50-50 लाख रुपए उस परिवार को दिया गया, एक मकान दिया गया, सरकार ने दी रात और रात, चाहे वो किसान नेता हो या कोई भी हो वहां पहुंचे। लेकिन आज पंजाब में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये घटनाएं पूरे देश में बड़ी समय साथ हो रही है। तो ये रोज है। और अगर मुख्यमंत्री परिवार से नहीं मिलते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन बरकरार रहेगा। और इसमें जितने दोषी किसान नेता है, उतने ही दोषी देश की राज्य की सरकारें हैं। वो पल्ला झाड़ करके उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया है, जिससे कि ये लोग आपस में मर जाएं और आंदोलन दूसरा रूप ले लें। ਉਹਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। देखिए, आज निगम आपके द्वार का पहला कार्यक्रम है जो वार्ड नंबर 14 में सेक्टर 45 में हुआ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग और स्थानीय जो यहाँ के नागरिक थे, उन्होंने यहाँ पे आके इस कार्यक्रम को अटेंड करा और बहुत अच्छे सुझाव जो है वो लोगों ने दिए। मगर जो समस्याएँ हैं वो रूटीन वाली समस्याएँ, जैसे हमने बताया, उसमें एक मेजर जो समस्या वो इन्फोर्समेंट से जुड़ा मामला, जो बुड़ैल की जो अपना
जिसको हम कबाड़ी मार्केट बोलते हैं, वहाँ का इशू मेजर है। तो उनको आश्वासन दिया है कि वहाँ से जो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में वहाँ से फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल सकती, तो कमिश्नर मैडम ने भी उनको आश्वासन दिया और मैंने भी बोला बिल्कुल समस्या का समाधान होगा। और छोटी छोटी समस्याएं जैसे जहाँ पे झाड़ू नहीं लगा या जो पार्क की सफाई नहीं हुई, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को हमने निवेदन भी करा है कि आप लोग ये जो है अपने पार्क है आप MOU करके ले सकते हैं, कॉरपोरेशन उसका आपको पे करेंगी, आप अपने एरिए के पार्क जो है वो अपने आप मेंटेन करें, हम उसका पैसा देंगे आपको। तो बहुत अच्छा एक ये पहले दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत ही पॉजिटिवली सुझाव दिए और कॉरपोरेशन की तारीफ भी करी जो हमने काम उनको बताए पिछले 4.5 साल में करे हैं। सर पानी की भी शिकायत आ रही है कि पानी गंदा जिस तरह से, कुछ एक लोगों ने बताया है 45D के एरिया में गंदा पानी आ रहा है, बट उन्होंने बताया कि थोड़ा जब जैसे 2-4 जगह आते हैं शुरू में गंदा, उसके बाद साफ़ हो जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे पाइप में लीकेज, कहीं ना कहीं मिट्टी कुछ ऐसी है, वो अधिकारियों को बोल दिया, इमीडिएट उसका समाधान हो जाएगा। सर शिकायत ये भी काफ़ी सुनने को आ रही है कि कूड़े वाले कूड़ा नहीं उठाते, ऊपर तक नहीं जाते। जी बिल्कुल, वो शिकायतें आई है कि ऊपर नहीं उठाते और हमने बिल्कुल बता दिया है, जो पहले कलेक्टर थे आज भी वही कलेक्टर है, सिर्फ एक MOU के माध्यम से कॉरपोरेशन के साथ जोड़ा है, उनको एक हमने जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज करके जोड़ा, उनका पैसा उनको पूरा दे रहे हैं। अगर वो अपना काम ड्यूटी नहीं कर रहे तो ज़रूर कॉरपोरेशन एक्शन लेगी और उनको बुला के पहले समझाएंगे, नहीं मानते तो एक्शन लेंगे, अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। और एक और सवाल है, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं पड़ेगा। देखिए पहले तो आप किसान कह रहे हैं, चंडीगढ़ में कोई किसानी नहीं होती, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के पोषित लोग हैं जो किसानों के रूप में आके अपना प्रचार करना चाहते हैं, मगर शहरवासी बहुत समझदार है, लोगों को पता है शहर में कितने किसान हैं। ये जो आज भी आ रहे थे वही आप देखोगे हर जगह पे वही 10 लोग हैं, वो सब जगह पहुंच जाते हैं। कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, टिकट की इच्छा है उसके लिए आते हैं। मगर जो सुरक्षा की बात है जो आपने कही है, लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो पुलिस के प्रशासन ने देखना है। हम कहीं नहीं डरते, हम जा रहे हैं शहर के विकास के लिए, हम वचनबद्ध हैं और हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम काम करने वालों में से। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਬੱਬਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਦਾ ਵਾਰਡ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 28C ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पहले सारे मेरे भाइयों को इस पर्व पे बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज पूर्णमासी का भी दिवस है।
तो मैं, जैसे बबला जी ने बोला, हम किसी जात पात में विश्वास नहीं करते, हम काम करने वाले लोग हैं और हम हमेशा आप लोगों का साथ लेके चलते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको 5 साल में बबला जी ने ऐसा कोई मौका दिया कि जहाँ पे आपने कभी सोचा कि उन्होंने जात पात देख के किसी का काम किया या नहीं किया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, और अब हम आप लोगों के बीच में ही रहने वाले हैं और आगे चल के हम लोगों ने इकट्ठा मिलके सारों ने काम करना है। मैं 2001 में पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ, तो ये सारे भाई बहनों से मैं काफ़ी सालों से 20 साल पहले मैं इलेक्शन यहीं से लड़ी थी और सारे शहर में सबसे बड़े बहुमत से जीती थी, और तब मैं किसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करती थी, और मैंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से बबला जी भी जीते, और बबला जी ने तो इतना ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, तो मेरे को लगता है कि मुझे इतना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। आप सबका काम उसी से आगे कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल जी, अब भी वो मेरे साथ हैं। क्या आपका भी वही रवैया रहेगा? देखो जी, मैं तो आगे चलूँगी, मेरे साथ साथ हम दोनों जने मिलके चलने वाले हैं, तो वो दबंग नेता की छवि हमेशा मेरे ऊपर भी रहेगी। तो हम दोनों जने मिल के डट के काम करेंगे। आप सब सेक्टर वासियों का हमें सिर्फ साथ चाहिए, प्यार चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम होगा जो हम नहीं कर पाएंगे अगर आप सबकी हमें कॉर्पोरेशन मिलेगा और सहमति मिलेगी। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जात पात किसने बनाई? जात पात जो है, हमारे जैसे जो लोग हैं ना, राजनीति करते हैं, ये जात पात बनाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, वो किसी के घर में पैदा होता है, हिंदू के घर में पैदा होता है। अगर वो बच्चा किसी मुसलमान के घर में चला जाए तो वो मुसलमान कहलाएगा। ये जात पात जो है, इसके ऊपर उठकर जो है काम करना चाहिए। जात पात के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। हम सब भाई हैं, जात पात नहीं होना चाहिए। ये जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं, इनका भी यही संदेशा था कि जात पात से उठकर काम करना चाहिए, और पर्टिकुलरली स्पेशली राजनीति के अंदर। और राजनीति में लोगों ने तो जात पात को अपना गोरख धंधा बना लिया है। जात पात के नाम पे वोटें मांगते हैं, काम ये करना नहीं है। जब चुनाव आते हैं, कभी फिर राम जी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। अरे अपनी जो है काम करके दिखाओ ना। मैं कहता हूँ कि राजनीति में धर्म होना ही नहीं चाहिए और ना जात पात होनी चाहिए। काम के ऊपर वोट जो है लोगों को देनी चाहिए। सभी चंडीगढ़ वासियों को और मेरे वार्ड के वासियों को आज महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म पर बहुत बहुत बधाई हो। और ये उनका त्यौहार नहीं है, ये हम सबका त्यौहार है। इससे बड़ा गुरु जो है कोई नहीं हुआ, यही हमारे गुरु है। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख मौसम का कर लेने तो दस दिए कि हुण ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है, यानी कि गर्मी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अज तापमान की गल की जाए तो अज वध तो वध तापमान 31.8 डिग्री सैल्सियस तो घट्टो घट्ट तापमान 18.0 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। तो अज दे इस बुलेटिन दे विच बस इन्ना ही, फिर होवेगी मुलाकात। सत श्री अकाल।